آج ویو 360 میں افغان عوام امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات اور پاکستان کے کردار کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ میں 5 بہنوں کے ساتھ پلا بڑا۔ نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی کے والد ضیاء الدین یوسفزئی سے خصوصی گفتگو، اور لاہور میں انجینئرنگ کے طلباء نے بنایا ٹیلی روبوٹک سسٹم جو غیر ملکی ماہرین پر انحصار کم کر سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارا زمان۔ ہم شروع کریں گے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری تناؤ سے۔ واشنگٹن آج تہران پر نئی پابندیوں کا اعلان کرنے والا ہے، جبکہ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو ایران کے خلاف حکمت عملی پہ بات چیت کے لیے آج سعودی عرب میں ہیں۔ تفصیلات کے لیے ہم چلیں گے ندیم یعقوب کی جانب۔ ندیم، ایران پہ پہلے بھی امریکہ کی کڑی معاشی پابندیاں لاگو ہوئی ہیں، تو آج ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جن پابندیوں کا اعلان ہونے والا ہے ان میں نیا کیا ہے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی بتا دیجیے گا ضرور کہ جو مائک پومپیو اس وقت دورہ کر رہے ہیں مشرق وسطیٰ کا، کن پوائنٹس کو ہٹ کر رہے ہیں وہ؟ سارا، امریکہ کی جو پالیسی حکمت عملی ہے وہ اس طرح کچھ نظر آ رہی ہے کہ ایک طرف تو امریکہ ایران پر دباؤ جاری رکھے ہوئے ہے، اور آج جیسا کہ آپ نے کہا امریکہ ایران کے خلاف تازہ اقتصادی پابندیاں جو ہیں ان کا اعلان کرنے والا ہے۔ مائک پومپیو جو وزیر خارجہ ہیں اس بارے میں کہہ چکے ہیں کہ یہ پابندیاں جو ہیں وہ بامعنی ہوں گی، مگر انہوں نے اس کے بارے میں کوئی تفصیلات فراہم نہیں کی۔ خود وزیر خارجہ جو ہیں وہ آج سعودی عرب پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے سعودی حکمرانوں، سعودی بادشاہ اور جو ولی عہد شہزادہ ہیں محمد بن سلمان، ان سے ملاقات کی ہے، اور انہوں نے جو خطے کی صورتحال ہے ایران کے حوالے سے اس پر بات چیت کی ہے۔ اس کے بعد مائک پومپیو جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات جائیں گے، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ ایران کے خلاف ایک خلیجی ممالک، ایشیائی ممالک اور یورپی ممالک کا ایک اتحاد قائم کیا جائے۔ یہاں واشنگٹن میں اس جو ساری صورتحال ہے اس کو اوورآل اس پر کس طرح سے کس نظر سے اسے دیکھا جا رہا ہے، آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں ایک رپورٹ۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران پر دباؤ جاری رکھے ہوئے ہے، اور صدر ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ امریکہ ایرانی تنصیبات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ صدر ٹرمپ کے قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے خبردار کیا ہے کہ ایران کو امریکہ کی دور اندیشی کو کمزوری کی نشانی نہیں سمجھنا چاہیے۔ کسی نے بھی ایران کو مشرق وسطیٰ میں شکار کا لائسنس نہیں دیا، جیسا کہ صدر ٹرمپ نے جمعے کے روز کہا کہ ہماری فوج تازہ دم ہے، اس کی تعمیر نو مکمل ہو چکی ہے اور وہ دنیا میں بہترین ہے۔ تناؤ کی اس فضا پر امریکہ کے سابق فوجی سربراہ تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ اس بات پر تشویش ہے کہ صدر کے پاس آپشنز کم پڑ گئی ہیں، ایسے میں جب کہ ان کی بیان بازی بدلتی رہتی ہے، اور جس طرح ہم ایران کے خلاف کارروائی کرنے کے قریب آئے یہ معاملہ ہاتھ سے نکل بھی سکتا ہے، اور اس وقت دنیا کے جو حالات ہیں ان میں ایران کے ساتھ جنگ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جس طریقے سے صدر اب تک ایران سے نمٹ رہے ہیں، کانگریس میں صدر کے حامی ان سے خوش ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایران صدر کے قدرے دبے دبے سے رد عمل پر کیا جواب دیتا ہے۔ اگر وہ پہلے کی طرح ٹینکرز کو بارودی سرنگیں لگاتے رہیں گے اور امریکی طیاروں پر فائرنگ کریں گے تو پھر ظاہر ہے صدر کئی قسم کی جوابی کارروائیاں کر سکتے ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے اپنے لیے کافی گنجائش رکھی ہے۔ ایک جانب جب صدر ٹرمپ ایران پر مزید معاشی دباؤ ڈالنے کی تیاری میں ہیں، اطلاعات کے مطابق امریکہ نے ایران کے حساس اداروں پر سائبر حملہ کیا ہے۔ اگر ایران دوبارہ خوشحال ہونا چاہتا ہے، ایک طرح سے ایران کو دوبارہ عظیم بنائیں، تو مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن یہ تب ممکن نہیں اگر ایران کو لگتا ہے کہ وہ 4-5 سال میں جوہری ہتھیار بھی بنا لے گا۔ ساتھ ہی صدر نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں یہ بھی کہا ہے کہ انہیں اس دن کا انتظار ہے جب ایران کے خلاف پابندیاں ختم کی جائیں گی۔ ندیم، یہ تو تھا واشنگٹن کا نقطہ نظر، تہران کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آ رہا ہے؟ سارا ایران کی طرف سے 2 معاملات پر رد عمل کا اظہار کیا گیا۔ پہلے تو یہ
के एक आला ओहदेदार ने कहा है कि अमेरिका की तरफ से उसके हसास इदारों पर जो साइबर हमला किया गया उसे नाकाम बना दिया गया है। दूसरी जानब जो दूसरा मामला जिस पर रद्द-ए-अमल का इजहार हुआ है वो है ईरान के जो सदर हैं उनके एक मुशीर हिसामुद्दीन अशीना। उन्होंने कहा है कि ईरान जो है वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार है बशर्ते कि अमेरिका जोहरी मुआहदे या जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के हवाले से कोई इंसेंटिव्स जो है उन पर बातचीत के लिए तैयार हो और जो इक़्तिसादी पाबंदियाँ ईरान पर लगी हुई हैं उनको ख़त्म करे। बेसिकली रियायतें दे अमेरिका तेहरान को, उसी की बुनियाद पर बातचीत होगी। नदीम याकूब हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू नदीम। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का 7वां दौर 29 जून से दोहा में शुरू होने वाला है। अफगानिस्तान में माहिरीन के एक ग्रुप की जानिब से बज़रिया इंटरनेट राय आमा का एक जायजा लिया गया है जिससे ये जाहिर हुआ है कि अफगानों की बड़ी तादाद को अमन अमल से मुतल्लिक मालूमात न होने के बराबर है। इस सर्वे के कुछ अहम नताइज के बारे में बता रही हैं शहनाज नफीस। मुल्क भर में अफगान माहिरीन की जानिब से किए गए एक ऑनलाइन सर्वे के मुताबिक सिर्फ 37.9% अफगान क़याम अमन की हालिया कोशिशों से मुकम्मल तौर पर वाकिफ हैं। 53.6% थोड़ा बहुत, जबकि 8.5 अमन मुज़ाकिरात के बारे में कुछ नहीं जानते। सर्वे के मुताबिक अवाम की 88% तादाद तालिबान के साथ फौरी जंगबंदी की हामी है, 10% जंगबंदी के खिलाफ, जबकि 3% इस बारे में कोई राय नहीं रखते। दूसरी जानिब 60% अफगान अवाम मुल्क के बाहर बड़े पैमाने पर पाए जाने वाले उस खदशे से मुत्तफिक नजर आते हैं कि तालिबान की वापसी कहीं उनकी पॉलिसीज की वापसी साबित ना हो, वो पॉलिसीज जिनके तहत तालिबान ने अपने दौरे हुकूमत में खवातीन के हुकूक जैसी आज़ादियों को सलब किए रखा था। आज का अफगानिस्तान 20 साल पहले वाले अफगानिस्तान से मुख्तलिफ है। आज वहाँ पढ़े लिखे नौजवान, सियासी शऊर रखने वाले मर्द और खवातीन हैं जो माशरे में अहम किरदार अदा करना चाहते हैं। सर्वे में हिस्सा लेने वाले 41% लोग तालिबान के साथ मुआहदे के नतीजे में अमन लौटने की उम्मीद नहीं रखते। मुज़ाकरात की मेज पर क्या हो रहा है इसके बारे में उनको पता नहीं और इस वजह से अफगान अवाम में बेयकीनी की सी सूरत हाल है। 63% लोगों की नज़र में माजी में अमन मुज़ाकिरात के लिए कोशिशों की नाकामी की वजह कमज़ोर अफगान हुकूमत और हमसाया ममालिक की मुदाखलत है। 39.8% अफगान अमरीका और तालिबान के मुज़ाकिरात में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ करते हैं, जबकि 44.9% अफगानों की नज़र में मुल्क में देरपा अमन के लिए अफगान हुकूमत को पाकिस्तान से बराह रास्त बात करनी चाहिए। देरपा अमन के लिए खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में इत्तफाक़ राय का होना बहुत ज़रूरी है। तालिबान को माली मदद कौन फराहम करता है और इनकी हिमायत कौन करता है? सर्वे में अफगान अवाम की एक बड़ी तादाद इसी तरफ इशारा कर रही है कि तालिबान के अलावा खित्ते के ममालिक के साथ मुज़ाकरात करना भी ज़रूरी है। हम उम्मीद करते हैं कि मतलब वो लोग हमारे साथ डेफिनेटली कोई अच्छा सलूक करे और हमारे साथ कुछ अच्छा मतलब बर्तावा करे ताकि आइंदा में अफगानिस्तान में सुलह आ जाए। हम कहते हैं हम सायों को कि हमारा प्रॉब्लम्स में आप दखालत न करें, ये प्रॉब्लम्स अगर इधर है तो कल उधर वो होगा। ये सवाल कि आया वक्त गुजरने के साथ अफगान अमन मुज़ाकिरात पर अफगान अवाम की राय में तब्दीली आई है, ये जानना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस मौजू पर कराए गए मुख्तलिफ सर्वेस के तरीक़ेकार और मेयार मुख्तलिफ होने के बायस उनका आपस में मुवाजना मुमकिन नहीं। शहनाज नफीस, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के अगले दौर से अब क्या उम्मीदें वाबस्ता की जा रही हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदा अयाज गुल से। सबसे पहले तो यही बताएगा कि काबुल में आपके ज़राए क्या कह रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में हमने देखा कि कई अहम जो अफगान रहनुमा हैं वो इन मुज़ाकरात की इफ़ादियत पर सवाल उठा चुके हैं। देखिए सारा, चाहे काबुल में हुकूमत है या अपोजिशन धड़े हैं, वहाँ पे इस वक्त यकीनी तौर पर इन मुज़ाकरात के हवाले से एक बेचैनी और तशवीश पाई जा रही है। और उसकी वजह यह है कि अब तक जो 6 अदवार हुए हैं इन मुज़ाकरात में, उनमें तो कुछ तफसीलात सामने आती रही हैं, लेकिन हालिया चंद हफ्तों में यानी ये जो मुज़ाकरात का दौर होने जा रहा है, इससे कबल तरफ़ैन की जानिब से दोनों तरफ से यानी अमरीकी जो टीम है और जो तालिबान की टीम है, बिल्कुल मुतज़ाद बयानात सामने आए हैं कि अगर कोई हतमी मुआहदा तय पाता है इन दोनों के माबैन तो उसकी असल शक्ल होगी क्या
और यही वो राज की बात है जो कि अभी तक सामने नहीं आई है कि आया तालिबान के मुताबिक अफगान गैर मुल्की अफवाज का इनखला और दहशतगर्दी के खिलाफ जो गारंटीज हैं क्या वो इस बातचीत में तय की जा रही हैं, या फिर अमेरिका के बकौल इसमें सीज फायर और इंट्रा अफगान डायलॉग के लिए भी राह हमवार होगी। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये बिल्कुल अब वाज़ेह हो गई है। इसलिए वो जो तवक्कुआत की जा रही थी कि ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं इस हफ्ते उसमें कोई बड़ी पेशरफ सामने आएगी, तो इस वक्त उस हवाले से खासी एक बेयकीनी सी पाई जा रही है। ऑलराइट, और भूरबन में भी पाकिस्तान ने हफ्ते के रोज़ एक अहम कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जिसमें अफगान सियासतदानों ने शिरकत की और उसी की कुछ मनाजिर अभी आपने देखे भी अपनी स्क्रीन पे नाजरीन। तो इस जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें भी अहम सदारती उम्मीदवारों ने तालिबान के और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात को भी बहुत कामयाब नहीं करार दिया, बल्कि बाज़ ने तो तालिबान से कुछ गारंटीज की ज़रूरत पे भी जोर दिया। तो आइए सुनते हैं उनकी ज़ुबानी। तालिबान को वाज़े तौर पर ये ऐलान करना होगा कि वो इंतखाबात के जरिए इक़्तिदार में आने पर यकीन रखते हैं और वादा करें कि किसी और तरीके से इक़्तिदार पर कब्जा नहीं करेंगे। जंग बंदी, जामे अमन मुआहिदा, कैदी, पाबंदियाँ और तालिबान को दोबारा माशरे का हिस्सा बनाना, ये वो तमाम मामलात हैं जिन्हें अफगान अवाम को खुद सुलझाना होगा। जिस तरह हमने देखा इन अहम अफगान सियासतदानों ने भी जो बात की उससे वही गैर यकीनी जिसका आपने जिक्र किया वो बड़ी वाज़ेह नजर आई। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अफगान सदर अशरफ गनी अब कुछ ही दिनों में पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। उनकी आमद से पहले पाकिस्तान ने जिस तरह अफगान अपोजिशन के अरकान के साथ भूरबन में कॉन्फ्रेंस की है, इसे पाकिस्तान के किरदार के हवाले से काबुल में आपके जराए कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अफगानिस्तान की हमेशा से ये शिकायत रही है कि पाकिस्तान उसके अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करता है। जी, ये दुरुस्त है कि पाकिस्तान के हवाले से खासे शकूक व शुबहात अभी भी मौजूद हैं अफगानिस्तान में, लेकिन ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है इसमें जो सबसे मुनफरद इसकी बात ये थी कि पहली मरतबा जो वो अफगान अपोजिशन के रहनुमा जो कि हमेशा से पाकिस्तान मुखालिफ बयानात देने के हवाले से खासे मकबूलियत रखते हैं अफगानिस्तान में, वो सारे भी इसमें मौजूद थे, जबकि हुकूमत के नुमाइंदगी भी मौजूद थी इसमें। तो पाकिस्तान की तरफ से जो पैगाम दिया गया है इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो ये है, और वो जो पाकिस्तान हालिया दिनों में पाकिस्तान की क़यादत ने कहा है कि मुस्तकबिल में अफगानिस्तान में कोई भी धड़ा इक़्तिदार में होता है या कुछ भी वहाँ पर कोई मसाइल उठते हैं तो पाकिस्तान के लिए कोई एक धड़ा, कोई एक फैक्शन जो है वो उसकी हिमायत नहीं करेगा और बिल्कुल अपने आप को न्यूट्रल रखेगा। और यही वजह है कि अगर अपोजिशन अफगान को दावत दी गई है यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में, तो अब अगर सदर गनी भी आ रहे हैं तो इससे ये पैगाम बड़े वाज़े तौर पर जा रहा है कि चाहे कोई हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो, पाकिस्तान के लिए सब बराबर हैं। लेकिन एक मैं ये बात आपको करता चलूं कि इसमें तालिबान जो हमें पता चला है तालिबान ज़राए से कि पाकिस्तान की कोशिश थी कि ये जो भूरबन में कॉन्फ्रेंस हुई है किसी तरीके से तालिबान की भी इसमें नुमाइंदगी हो जाए, लेकिन ऐन वक्त पर जो हमारे ज़राए हैं उनका कहना है कि तालिबान ने इसमें शिरकत से इनकार कर दिया। और राइट, और जाते जाते देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा हैं उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर क्या कहा। The vicious circle of mistrust. अदम एतमाद के घिनौने चक्कर ने हमें बहुत लंबा अरसा अपनी लपेट में लिए रखा है। इस जलती पर हमारे दुश्मनों ने भी तेल डाला। इल्जाम तराशी से किसी का फायदा नहीं हुआ। इस मनफी सूरत हाल से निकलना अब नागुज़ीर हो चुका है। तो एतमाद साजी की ज़रूरत पे उन्होंने भी जोर दिया। याज़गुल, आपने जिस तरह बताया कि तालिबान के नुमाइंदे इसमें शामिल नहीं हुए, लेकिन मैंने देखा कि माजी में जब मॉस्को में इस तरह की कॉन्फ्रेंस हुई तो वो मौजूद थे। तो पाकिस्तान में उनकी गैर मौजूदगी का कितना असर देखा गया? वो तो जैसे आपको पता है सारा कि जब तालिबान का ये मौक़िफ़ शुरू से रहा है कि ऐसी कोई भी कॉन्फ्रेंस या मुज़ाकरात जिसमें अफ़गान हुकूमत की नुमाइंदगी होगी जिसे तालिबान ने कभी तस्लीम नहीं किया है तो वो उस पर शिरकत नहीं करेंगे। तो शायद एक बुनियादी इसकी वजह यही है कि मॉस्को में जब भी वो मुलाकातें उनकी हुई हैं, पिछले चंद महीनों में 2 मुलाकातें हो चुकी हैं अफ़गान अपोजिशन के साथ, तो वहाँ पे हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदगी नहीं थी। लेकिन ये आपको कहता चलूँ सारा कि जब ये कॉन्फ्रेंस में हमने शिरकत की है तो एक बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आई है कि तालिबान के साथ अमेरिका की बातचीत जो चल रही है उस हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल भी नज़र आ रही है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर यानी काबुल में एक बहुत बड़ी नाइत्तेफाकी पाई जा रही है और ऐसा लगता है कि वो तैयार नहीं है कि अगर कल इंट्रा अफगान डायलॉग अमेरिका शुरू कराने में कामयाब भी हो जाता है तो ये वाज़ेह हो गया है कि कोई रोड मैप या कोई ऐसी हिकमत अमली काबुल में मौजूद नहीं है कि वो तालिबान के साथ अगर बातचीत होती है
تو किन शराइत पर वो उसको आगे लेके जा सकेंगे या अमन कायम हो सकेगा। और ये एक बहुत बड़ा गैप है जो इस वक्त भी एग्जिस्ट कर रहा है, जो आगे जाके भी सूरत हाल को मुतासर कर सकता है। आजगुल हमारे साथ इस्लामाबाद से बजरिया स्काइप। थैंक यू वेरी मच अयाज फॉर दिस डिटेल्स। थैंक यू। तुर्की के शहर इस्तांबुल में मेयर के इंतखाब में सदर रजब तैयब अर्दोवान की जमात AK पार्टी को दूसरी मरतबा शिकस्त का सामना हुआ, जिसे सदर अर्दोवान के लिए एक बड़ा सियासी धचका करार दिया जा रहा है। इतवार को होने वाले इलेक्शन में अपोजिशन ने 54% वोटों की वाज़ेह बढ़तरी हासिल की और इस्तांबुल के मेयर का इंतखाब जीता। नौमुंतखब मेयर के हजारों हामी इस्तांबुल की सड़कों पर निकलकर जश्न मनाते रहे। अपोजिशन जमात 3 माह कबल होने वाले मेयर के इंतखाबात में भी कामयाब हुई थी, ताहम सदर अर्दोवान की जमात ने नताइज तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और दोबारा इलेक्शन कराने का मुतालबा किया था। नए नताइज को सदर अर्दोवान की जमात ने तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से अहम खबरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। और अगर हमारी वेबसाइट को लॉग ऑन करने में आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश आ रही है तो facebook.com/VOA उर्दू का पेज आपके लिए हर वक्त हाजिर है, जहां आपको हमारी तमाम तर कंटेंट एक क्लिक के जरिए मिलेगी। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का नाम पूरी दुनिया में पहचाना जाता है और दुनिया मानती है कि मलाला को इस मकाम तक पहुंचाने में सबसे अहम किरदार अदा किया उनके वालिद ज़ियाउद्दीन यूसुफजई ने। वो क्या तजुर्बात थे जिनसे गुजरकर ज़ियाउद्दीन एक ऐसे वालिद बने जिसने अपनी बेटी के पर काटने के बजाय उसे ऊंचा उड़ना सिखाया। ये अब आप पढ़ सकते हैं उनकी किताब लेट हर फ्लाई में। किताब की अमेरिका में रहनुमाई के मौके पर हमारे साथी नुखबत मलिक ने ज़ियाउद्दीन यूसुफजई से उनकी ज़िंदगी के कुछ अहम पहलुओं के बारे में बातचीत की। आइए देखते हैं। मेरी जो परवरिश और मेरी पैदाइश जो है वो एक जो टिपिकल मिसाली पैदाराना ख़ानदान होता है उसमें हुई। मैं 5 बहनों के साथ पला बड़ा और मैं देखता था कि एक ही छत के अंदर 2 किस्म के पेरेंटहुड होती थी और जो सबसे बुरी इम्तियाजी सलूक थी वो तालीम की थी। वहाँ पर लड़कों के लिए तो स्कूल थे लेकिन लड़कियों के लिए स्कूल नहीं थे। तो उन हालात में जब मैं पला बड़ा तो मैं बहुत ही इस हवाले से बेदार था। कभी घर में होता है कुछ के मतलब बेटे शिकायत करते हो कि यहाँ हमें अब इम्तियाजी सलूक का सामना हो रहा है? हमारे खानदान का जो सोशल वैल्यू है वो ये है कि ये बिल्कुल बराबर है। उनके लिए ये कोई सवाल ही नहीं है कि लड़का है लड़की है वो कमतर क्यों है, मैं नहीं बर्तरी कमतरी का तस्वर ही नहीं है। मलाला पे अटैक हुआ तो और जब तक उसे होश नहीं आया, जब तक वो कोमा में रही, आप क्या सोचते थे उस वक्त? मैं एक बाप था और मैं एक ऐसा बाप जो कि इंसान की बुनियादी हुकूक पर इतना ही ईमान रखता हो जितना उसको खुदा पे ईमान है। मलाला को एक नॉर्मल स्टूडेंट से जो कि होती हैं बच्चियां, शी लव्ड एजुकेशन, उसको एक एजुकेशन के राइट के लिए फाइटर बनना पड़ा। और ये हमारा मैंडेट नहीं था कि हमें किसी ने वोट दिया था कि आपने हमारे हक के लिए उठना है। ये मैंडेट होता है एक शहरी की हैसियत से आपका, जो हर एक बंदे का होता है। पाकिस्तान की अगर बात करें तो बहुत तनकीद आई आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर। आप इस तनकीद को कैसे देखते हैं? पाकिस्तान में बदकिस्मती से पोलराइजेशन हर एक बंदे के हवाले से। मेरे लिए सबसे बुरा दिन वो होगा जब मैं अपनी नजरों में खुद मशकूक हो जाऊंगा। ज़ियाउद्दीन साहब, आपकी सियासी बसीरत और सियासी अवेयरनेस और आगाही जो है वो खासी है, आप सियासत में क्यों नहीं आए? मैं असल में ज्यादा बिलीव करता था कि मैं चेंज ले आऊं, तब्दीली ले आऊं। मेरा ये शौक कम था कि मैं कोई वजीर मुशीर ये बन जाऊं। तो फिर मैंने सोचा कि अपना वक्त जो है वहां पर कभी कभी सही लाहासिल जो होती हैं उसमें सर्फ करने के बजाय मैं अपने मुआशरे की खिदमत जो है वो तालीम के ज़रिए करना चाहता था। और मेरा यकीन है कि मैंने बहुत दुरुस्त फैसला किया था। चले इधर इधर थोड़ा सा इधर थोड़ा इधर हो जाए। हम सब अपने आप में कहाँ परफेक्ट हैं? ये जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, ये अजीफा का जब उसके बाजू प्रोस्थेटिक्स लगा, यही एक दूसरे को बेहतर बनाते हैं और फिर मिलकर एक बेहतर मुल्क बनाते हैं हम। लेकिन मुल्क भी अपने आप में कहाँ परफेक्ट होते हैं? तो दुनिया के दूसरे मुल्क एक दूसरे के लिए हाथ बढ़ाते हैं। ऐसे ही तो एक बेहतर दुनिया बनाते हैं हम। One teacher, one book,
और दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान इसीलिए तो दिखाते हैं। नए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस एग्जीबिशन के डिजाइनर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का वरना अपने आप में हम सब कहाँ परफेक्ट हैं। ये मैं हूँ आपका मेजबान खालिद हमीद। व्यू 360 सिर्फ आज न्यूज़ पर। लाहौर में इंजीनियरिंग के 3 तालिब इल्मों ने एक ऐसा टेली रोबोटिक सिस्टम बनाया है जो वर्चुअल रियलिटी की मदद से काम करता है। टेली रोबोटिक्स में दूर बैठकर ही रोबोट को कंट्रोल किया जा सकता है और वर्चुअल रियलिटी चूंकि हकीकत का मंजर पेश करती है, इसलिए एक रोबोट से वहां भी काम लिया जा सकता है जहां माहिरीन का पहुंचना मुश्किल होता है। तो इसे बनाने वाले नौजवानों का कहना है कि इस सिस्टम के आने से पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर को अब तकनीकी मदद के लिए गैर मुल्की माहिरीन की आमद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो आज का मेड इन पाकिस्तान लेके आई हैं लाहौर से समन खान। मिलिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर के मैकाट्रॉनिक्स के तालिब इल्मों अरमगान सरवर, अब्दुल्ला हमायों और मोहम्मद वसीम से, जिन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर के एक बड़े मसले को मुकामी सतह पर हल करने की कोशिश की है। किसी मशीन का डिजाइन बदलना हो या इसकी कोई खराबी दूर करनी हो, इनका बनाया टेली रोबोटिक सिस्टम ये पेचीदा काम वर्चुअल रियलिटी की मदद से कर सकता है। पाथ प्लान करना है किसी रोबोट का, तो आपको एक बाहर से सर्विस प्रोवाइडर जिसने आपको इंडस्ट्री में रोबोट इंस्टॉल किया, आपको उन्हें बुलाना पड़ता है स्पेशल, और वो आके आपके रोबोट का पाथ चेंज करते हैं। बहुत लंबा टास्क है, लाइक समटाइम्स डेज समटाइम्स वीक्स लग जाते हैं, और उसके दौरान ये होता है कि आपको इंडस्ट्री बंद है, आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो हमने एक सोल्यूशन, ईजी सोल्यूशन इसलिए प्रोवाइड किया है। असल रोबोट पर लगा कैमरा कंप्यूटर स्क्रीन तक मनासिर पहुंचाता है, जिसके बाद वर्चुअल हेडसेट की मदद से उससे काम लिया जाता है। हमारे रोबोट में 2 फीचर्स हैं, एक लाइव मोड है और एक टीच मोड है। लाइव मोड में ये होता है कि रोबोट जो एंड यूज़र है वो रोबोट का एंड इफेक्टर वर्चुअल स्पेस में पकड़ के उसको मूव करवाता है। एक दूसरा मोड भी है जिसमें टीच मोड है, जिसमें भी मूवमेंट्स हम वर्चुअल स्पेस में हम मूव करवाएंगे वो ही मूवमेंट स्टोर होती जाएंगी। वर्चुअल रियलिटी की टेक्नोलॉजी से काम करने वाले इस रोबोट को दूर बैठे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हम बॉम्ब डिस्पोजल टीम्स की बात करें तो ह्यूमन एक सेफ साइड पर बैठ के, कमरे में बैठ के उस रोबोट को वर्चुअल रियलिटी के थ्रू देखे, और उसमें जो है उसको पता होगा कि मैंने कहाँ पर किस तरह से बॉम्ब डिस्पोज करना है, पर वो काम आपका पीछे रोबोट कर रहा होगा। तालीमी सतह पर बने इस प्रोटोटाइप को मार्केट में मुतारिफ करने के लिए यूनिवर्सिटी इंतजामिया के पास मंसूबा मौजूद है। नेशनल सेंटर ऑफ रोबोटिक्स भी एक फोरम है जिसमें काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व है, और उन यूनिवर्सिटीज़ के आगे इंडस्ट्रीज़ के साथ भी लिंक्स है। डिफरेंट जो रोबोट्स पे काम हो रहा है वो इंडस्ट्रीज़ के लिंक के साथ ही हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली हम इस प्रोजेक्ट को भी वहाँ पे लॉन्च करने के। तालिब इल्मों को उम्मीद है कि इस टेली रोबोटिक सिस्टम की मदद से निचली और दरमियानी सतह के मैन्युफैक्चरर्स में ऑटोमेशन को फरोग मिलेगा। जामियात में फाइनल थीसिस तो पढ़ाई का हिस्सा होते ही हैं। ऐसे में अगर इन पर की जाने वाली मेहनत ऐसे प्रोजेक्ट्स पर की जाए जिससे देरीना मसले का हल निकल सके, तो इससे बेहतर भला और क्या हो सकता है। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, लाहौर। और मेड इन पाकिस्तान के इस खुसूसी सिलसिले के साथ खत्म होता है आज का व्यू 360। आपके फीडबैक का हमें इंतजार रहेगा। आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे, और ताज़ा तरीन खबरें आपको मिलेंगी हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारा ज़मान को भी इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।